Very good morning to all of you. Now, this time we will study the potential or the electric potential due to system of charges. We have the two ways, the distribution of the charge. दो तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देखते हैं, एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और दूसरा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. Discrete means the charge is spreaded randomly, or we can say that the cluster of the charges is there. But linear, in a pattern, if it is in the pattern, that is called the continuous distribution of charge. That is linear charge distribution, surface charge distribution और volume charge distribution. तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? सबसे पहले discrete charge distribution, that is the charges, number of point charges. Discrete distribution of charge. Of charges. और ये एक नंबर पहला हो गया जिसमें हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. तो ऐसे में सपोज करो दीज आर द चार्ज, सपोज इट इज द Q1, चार्ज Q2, चार्ज Q3 and suppose it is the charge Qn. Somewhere we have to calculate the potential, and that is the potential at the point P due to this distribution of the charges. Now that have the distance, यहाँ से इसका distance है, ये आपका potential निकालना है और ये distance आपका क्या है? That is R1 distance. From this it is the distance of R2. From here it is the distance of R3 and up from this it is the distance of Rn. So for what is the potential at this point? यहाँ पर कितना potential है due to number of charges. चार्ज यहाँ है और सभी चार्ज का फील्ड लाइंस है. इसको मान लो हमने E1 ले लिया, यहाँ पर ये दिख रहा है, इसको हमने E2 ले लिया, यहाँ दिख रहा है फील्ड E3 हो गया, यहाँ दिख रहा है दैट इज द फील्ड En हो गया. दिस इज द En फील्ड. लेकिन फील्ड से अभी हमको कोई मतलब नहीं है. इस जगह पे पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल कितना है? तो हम सब जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, according to principle of superposition, that V is equal to V1 plus V2 plus and up to the, let it be the V3 plus and up to Vn plus Vn. Now potential is a scalar quantity, potential that related with the energy. अब ऐसे में हम अलग अलग सबका पोटेंशियल निकाल रहे हैं. The potential of the charge at the point P, Q1 charge, potential due to the Q1 charge, that potential is the V1 is equal to how much it is? 1 by 4 pi epsilon naught. क्या लिख सकते हैं? Due to चार्ज Q1, यहां पे देख रहे हैं ड्यू टू चार्ज Q1, चार्ज Q1 and that is the V1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. Here it is the Q1 by R1. Similarly, इसी तरह due to the charge Q2, that is the V2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q2 by R2 and so on. इसी तरह देख रहे हैं for the number of charges up to n turns. n turns तक अगर चार्ज हमारे पास है तो for the charge Qn it is the potential to the n is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. n टर्म्स तक के लिए पोटेंशियल n का कितना है? Qn by the Rn. एवरीथिंग इज गिवन हियर, हर चीज यहां पर लिखा हुआ है. अब इन सभी को हम किस में रखने जा रहे हैं? ये पूरा रिलेशन हो गया एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 1.
नेट पोटेंशियल, अब इसको हम यहाँ और इस सभी रिलेशन को यहां से यहां तक को हमने मान लिया एक रिलेशन 2। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द रिलेशन 2 ओवर रिलेशन 1। नाउ substituting 2 in 1 we get कितना आया हमारे पास, that is the potential V is equal to, everyone means every potential have some common character, 1/4 pi epsilon naught here also, यहाँ भी है 1/4 pi epsilon naught, यहाँ भी है, मतलब सभी में ये रिलेशन है। इसको हम कॉमन के रूप में ले लेंगे तो कितना आ गया 1/4 pi epsilon naught and here it is the q1 by r1 plus q2 by r2 plus q3 by r3 plus up to the qn by rn. So this is the relation, that is the net potential at the p point. अब इसी net potential को हम यहाँ देख रहे हैं कि net potential at the p point due to the cluster of the charges, point charges or due to the number of the point charges क्या मिला हमको, इसको अब समेशन करेंगे सारे रिलेशन को, इस रिलेशन नंबर 3 को। नाउ वी मेक ए समेशन। नाउ इक्वेशन 3 आल्सो रिटन एज, कैसे लिखा रहेगा, b is equal to 1/4 pi epsilon naught and in place of this we take the summation for what, I terms from 0 to n and that में qi by ri and this is the complete relation। मीन्स क्या देखें यहाँ पर, इस पॉइंट पी पॉइंट पे सारा पोटेंशियल, सभी का एनर्जी पोटेंशियल क्या हो रहा है, सिंपल ऐड हो जा रहा है एंड दिस बिकम द रिलेशन नंबर 4। इट इज द वन वे, एक तरह से आप देखें, दैट इज द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, कंटिन्यूअस में कैसा कैसा है। सो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज 3 तरह से हम लोग देख रहे हैं और वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर दूसरा हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों को अभी हम यहां पर देखेंगे, दैट इज द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इन द कंटिन्यूअस distribution of charge, that is the second। तो पहला क्या हम लोग लेते हैं फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट हो गया फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज करो चार्ज ऐसा है प्लस 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 प्लस, ऐसे में आपके पास चार्ज है। अभी किसी पॉइंट पे आपको निकालना है, दैट इज द पी पॉइंट। ये पी पॉइंट है, यहां पे हमको नेट पोटेंशियल लेना है। क्या करेंगे, पहले हम छोटा सा पार्ट ले लेंगे, दैट इज द dq पार्ट। तो ऐसे में पोटेंशियल फॉर द dq, और सपोज करो मान लो कि यहां से इसकी दूरी, यहां से यहां तक की दूरी r है, तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट कितना होगा v for the p point। तो v is equal to simple relation 1/4 pi epsilon naught। Here we use the charge dq by the this of the r distance। now ये कितना पोटेंशियल निकला, dv निकला, इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेटिंग द above equation एवं रिलेशन विथ लिमिट अब ऐसे में इस v को आप क्या लिए, दैट इज द dv इज इक्वल टू, अब इस पूरे का हो गया कांस्टेंट टर्म में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या इंटीग्रेशन हो रहा है तो टोटल लेंथ l का, दैट इज द dq बाय द r। नाउ सिंस बोल सकते हैं हम लोग, सिंस लेमडा इज द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा चलो यहां पर लिख देते हैं
that is lambda is the linear charge distribution. lambda को क्या ले रहे हैं, linear charge distribution or density, where lambda is the linear charge density. क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो ऐसे में लेम्डा इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज द dq by TL फॉर द लेंथ। यहां से यहां तक जो लेंथ आपने लिया, ये जो छोटा सा पार्ट आप लिए, दैट इज द DL पार्ट। तो ऐसे में हम इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज dq इज इक्वल टू लेम्डा DL। अब ये रिलेशन हमारे पास आ गया यहां पर, इसको इस रिलेशन को यहां रखिए। नाउ द एबव रिलेशन बिकम्स, नाउ द एबव रिलेशन बिकम्स कितना हो गया, तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 पाई epsilon naught integration for the dq is the lambda dl to the distance r। और ये रिलेशन आपका लीनियर चार्ज के केस में पोटेंशियल निकल गया। सो टोटल पोटेंशियल दैट वी हैव फॉर द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी तरह हम लीनियर चार्ज को बदल करके सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, तो यहां से अब हम सेकंड ले रहे हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड, that is surface charge distribution। अब ये भी अब देख रहे हैं, इसका पोटेंशियल यहाँ पर ठीक है उतना ही रखेंगे, इंटीग्रेशन भी आप यहाँ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ लेंथ की जगह पे क्या हो जाएगा, सरफेस हो जाएगा। पहले देखो सरफेस में कैसे रहेगा अरेंजमेंट। मान लो कोई सरफेस आपने लिया, that is the surface, this is the surface suppose of the charge distributed where the sigma is the surface charge density। तो ऐसे में छोटा सा पोर्शन हम ले रहे हैं चार्ज का यहाँ पे, और ये छोटा पोर्शन हो गया ds फॉर द कंप्लीट सरफेस S। और यहां से इसकी दूरी, सपोज हियर इज द P पॉइंट वेयर वी विल कैलकुलेट द पोटेंशियल। क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे P पॉइंट पे। तो ये ds का वैल्यू यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, तो उस सिमिलरली अगर छोटे से पार्ट का ले रहे हैं, तो ऐसे में dv इज इक्वल टू 1/4 पाई epsilon naught dq by r। r is the distance from the surface to that of the point, charge surface charge to the point। अब यहां पर इंटीग्रेट भी किए, लेकिन यहां पर हमारे पास सरफेस है, सो सरफेस का s, और सिग्मा के जगह पे अब हमारे पास कितना आ गया, लैम्डा के जगह पे सिग्मा लिखेंगे, एंड दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू ds बने dq by ds। तो ऐसे में ये रिलेशन कितना हो गया, सिग्मा ds, और यहां पर अब क्या मिल गया, दैट फॉर द सरफेस यहां पर लिख देंगे सिग्मा ds। दिस इज द रिलेशन फॉर द पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी तरह वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में थर्ड जो हम देख रहे हैं, दैट इज द थर्ड वन इज द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां वॉल्यूम को अगर कंसीडर करें, तो ये वॉल्यूम हो गया आपका, सपोज करो कि चार्ज किसी वॉल्यूम से, कोई भी वॉल्यूम है आपके पास, ये वॉल्यूम है, ऐसे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड रो इज द डेंसिटी, सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो क्या है, बाहर लिख देते हैं, रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो छोटा सा स्पेस आप कंसीडर कर रहे हैं, छोटा सा वॉल्यूम स्पेस किए, दैट इज द dv, और यहां चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहां से आप कंसीडर कर रहे हैं टू दैट ऑफ द वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एनी मेटेरियल कैरेक्टर टू द पॉइंट P, और यहां पोटेंशियल आपको निकालना है।
और ये दूरी कितना है इस वॉल्यूम से, ये जो वॉल्यूम आपने कंसीडर किया है उस वॉल्यूम से ये दूरी कितना है, दैट इज द r डिस्टेंस। फिर रिलेशन वही लेंगे, यहां पर dq है, dv पे कितना चार्ज है, दैट इज dq चार्ज। dq चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं टू दैट ऑफ द स्मॉल dv वॉल्यूम, दैट इज द dq चार्ज। और टोटल वॉल्यूम को आपने v के रूप में कंसीडर किया, तो ऐसे में इंटीग्रेट फिर उसी को करेंगे और यहां पर हम क्या लिख देंगे, दैट इज द v। यहां भी क्या लिखाएगा, v लिखाएगा और dq वही रहेगा। इंटीग्रेटिंग द एबव रिलेशन मींस dv को आप कंसीडर किए। अब यहां पर जो आपने डेंसिटी दिया है वो हो गया रो इज द डेंसिटी एंड दैट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को आप क्या लिखेंगे, दैट इज द रो टू दैट ऑफ द dv, सॉरी दिस इज द वॉल्यूम dq बाय, फॉर कंप्लीट वॉल्यूम वी विल कंसीडर एंड छोटे से पार्ट में है dv। तो ऐसे में dq इज इक्वल टू हियर इट इज द रो dv। और यही रिलेशन हमारे पास यहां आ गया, इसको हम यहां से हटाएंगे और यहां पे लिख देंगे रो dv। सो पोटेंशियल यहां भी s के जगह v लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन टू द होल वॉल्यूम। सो दिस इज द अरेंजमेंट जिसमें आपने चार्ज को देखा, क्योंकि सिस्टम ऑफ चार्जेस बात कर रहे हैं तो दो तरह से आपने देखा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और विद द सर्टेन पैटर्न। और इसके साथ एक और है, अगर हम इन तीनों को भी कंसीडर करके जोड़ दें तो भी हमारे पास रिलेशन आएगा। और तीनों को अगर जोड़ोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाकी इसी तरह हम जोड़ते चले जाएंगे, मतलब तीनों को कंसीडर करेंगे। तो ये अरेंजमेंट था और इसके द्वारा हम किसी r डिस्टेंस या सर्टेन डिस्टेंस पे पोटेंशियल कैलकुलेट किए। So next video we will see more about the electric potential, that means potential related with the dipole or in the general point. Next day, next video. Thank you.